Alright everybody, so are you ready? Shall we start the class? Yes, sir. Well, that's really awesome, so get ready, and I'll be turning my camera off too because of this particular thing it consumes a lot of data. So let's turn it off and let's go ahead and start the class right now. So this is going to be what? कौन सा दिन होने वाला है सर? 14. Day 14, which means it's all about a quarter of not quarter 90 days का होने वाला है. चलो 14 days खत्म हो गए, आगे बढ़ते हैं. This is 14 days. First of all, we will be revising all the things. To be, to have, you have already learned quantifiers, prepositions, pronouns, subjective, objective, and possessive case, special use of it. Clear होने चाहिए सारे topics. Okay, then how to tell time, trick which I told you, models, intermediate models, and then the use of not. ये सब आपने देख लिया. आपने ये भी देखा कि किसी भी सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनाते हैं, वेदर उसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, उसकी हेल्प से. आगे बढ़ते लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपने ये रूल देखा था कल का धमाकेदार रूल्स. ओके, पहला 1.1 सेकंड एंड थर्ड मेरी हम इन तीनों को कवर कर लिए थे. आगे मूव करेंगे बट उसके पहले जस्ट मेक श्योर यू आर एबल टू आंसर एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपर्ली. इज दैट क्लियर? इफ आई आस्क द क्वेश्चन, सो इज दैट क्लियर टू यू राइट नाउ? Yes, sir. Yes. Okay, so what I'm gonna do right now, first of all I'm gonna be asking questions related to all the rules learned so far, and then we'll be going ahead learning 4th and 5th rule, and in this way we'll be ending this particular chapter. Is that clear? Yes, sir. Okay, so here we are first of all questioning and answering session. You guys have to answer the questions one by one, and if you guys have face any problem and unable to understand, you can let me know. Is that clear? Yes, sir. Okay, that's really awesome. So let's go ahead. The very first question, first of all Shiv and then Abhishek. The very first question for Shiv, and that's gonna be like तुम जा सकते हो. बहुत ही आसान. You can go, sir. You can go, तुम जा सकते हो. अभी तुम नहीं जा सकते हो, निगेटिव भी बना दो भैया. तुम नहीं जा सकते हो. You can't go. You can't go है तो बोलो you can not go, लेकिन can not को ऐसे बोलोगे you can not go, और you can't go तुम शॉर्ट कर सकते हो you can't go. Okay, मुझे जाना चाहिए. अभिषेक, Abhishek, can you hear me? Where is Sir, where is he? maybe his audio is off. Okay, his mic is on right now, I think. By the way, I'm turning the I mean captions on right now, and I'll directly be asking questions. So in this way, you guys will be able to understand better, and especially the person who's watching the video, that person can understand Hindi really well, and English will be written in form of captions, so it will be easy peasy. So are you guys ready? Yes, sir. Okay, that's really awesome. So right now I'm just directly gonna ask questions directly, like I will not be typing at all. I'll be just asking questions and you guys have to answer them. So get ready, and shall I start the asking questions? Yes, sir. Okay, the very first question, and that's gonna be Shiv, Abhishek. This is going to be sequence. And the very first question, and that's gonna be like मुझे TV देखना है. Shiv, I have to watch TV. मुझे TV नहीं देखना है. I don't have to watch TV. अभिषेक, मैं खेला करता था. Mr. Abhishek, can you hear me? What's good? Sir. हाँ. पता नहीं क्यों बट उसकी आवाज आ ही नहीं रही है, वो बोल रहा है. Oh. Rejoin the meeting if there's a problem. Join it again. Join it again. Mr. Okay. Abhishek. You might be facing some problems right now, but if you join the meeting, rejoin the meeting, it's gonna be okay. Okay. By the way, let's go ahead. Next question for you, and that's gonna be like मेरे पास पैसा है. I have money. मेरे पास पैसा नहीं है. I don't have money. तुम मेरे भाई हो यार. You are my brother. तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो. You aren't my brother. You aren't my brother, you are my enemy. तुम मेरे दुश्मन हो. Next question, light आने वाली है. The light is about to come. The light is about to come. Let me change the language of captions. Maybe Hindi, and then let's see what's gonna be the result. Okay, here we are. All right. So I hope everyone can hear me right now. Okay, let's go ahead. Next question for you, and that's gonna be like मुझे जाना था. I had to go. मुझे प्रैक्टिस करना था. I had to do practice. I had to practice. Simple. It's awkward यार. हिंदी में आ रहा है, but captions are not really good. I had to do practice. चलेगा, इतना तो समझ ही सकते हैं ना. But Hindi is not that good. So I'll be just shifting to English right now. English. Here we are. Okay. मुझे जाने दो.
सॉरी या मुझे जाने दो, Let me go. मुझे खाना खाने दो, Let me eat food. मुझे खाना बनाना होगा, कम I will have to eat cook food. I will have to cook food. Abhishek, reply right now. This question is going to be for you, and that's gonna be like school मत जाओ. Don't go to school. Don't go to school. Abhishek, can you speak? Don't go to school. He is still facing the problem. Wow. Okay. Again, he is facing this problem. As far as your mic is concerned, that's on, which means you are speaking, but your receiver is not getting the voice. Sir, मेरे में voice नहीं जा रही है. Can you hear me properly or not? First of all, let me know. Can you hear me? Yes, sir, he can hear you. Okay, that's really awesome. Don't worry about it. There could be some problems with the mobile too. Maybe the receiver is not catching the voice properly. But don't worry. You have to answer the questions as the CV is answering them right now. Okay, so keep answering the questions. Whether I can hear you or not, that doesn't matter. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक आज शायद राम आए. मैं आज शायद राम आए. राम में कम. राम में कम टुडे. आज शायद ही राम आए. राम में माइट कम टुडे. राम माइट कम टुडे. राम को आना पड़ेगा. राम विल हैव टू कम. राम विल हैव टू कम. तुम दिवाली मना सकते हो. यू कैन सेलिब्रेट द दिवाली. यू कैन सेलिब्रेट दिवाली. तुम्हें दिवाली जरूर मनाना चाहिए. यू शुड सेलिब्रेट दिवाली. मुझे दिवाली नहीं मनाना है. I don't have to celebrate Diwali. I don't have to celebrate Diwali. And just keep in mind, when I speak in Hindi, that captions are not being written over there. Okay, especially when I speak in in English, or you speak in English, only then the captions are written over here on the screen. So just keep in mind. Okay, let's go ahead, and the next question that's gonna be like पढ़ाई करते रहो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं. Keep study because your exam is about to come. Keep studying, आप ing लगाओगे. So keep studying because your exams are about to come. Is that clear? Yes. Okay, in this way you have to go ahead. Next question for you. खेलते रहो. Keep playing. आते रहो. Keep coming. मुझसे मिलते रहो. Keep meeting. Hey, turn the camera on यार. Right now I'm just here, so I should be able to see you guys. Okay. ऐसे मैंने बोला कि बारिश होने वाली होगी. It will be rain. It will be about to rain. बारिश होने वाली होगी. It will be about to rain. आज बारिश होना तय है मेरे दोस्त. It bound, yes sir. आज बारिश होना तय. It bound. It is bound to rain today. आप बोलोगे it is bound to rain today. आज बारिश होना तय. ऐसी बारिश होना तय था. It was bound to rain today. It was bound to rain. Simple. बारिश होना तय था. And आज बारिश होना तय था, तो you would say it was bound to rain today, something like this. Next question for you, and that's gonna be like लिखना शुरू करो. चलो लिखना शुरू करो. स्टार्ट राइटिंग या तो आप बिगिन टू राइट भी बोल सकते हो. तो स्टार्ट राइटिंग, बिगिन टू राइट, समथिंग लाइक दिस. लिखना बंद करो. डोंट राइटिंग. नॉट रियली. डोंट राइट मतलब लिखो मत. अगर मैं बोलूँ मत लिखो तो आप बोलोगे डोंट राइट. बट आई एम सेइंग लिखना बंद करो. बंद करना मतलब होता है स्टॉप. स्टॉप राइटिंग. नॉट रियली. स्टॉप राइटिंग. सिंपल. स्टॉप मतलब बंद कर दो. स्टॉप राइटिंग मतलब लिखना बंद कर दो. इज दैट क्लियर? कुछ वर्ड्स मैंने बताया था, वर्ड्स सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, एंड देन ओनली यू आर गोना बी एबल टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस. सो दीज आर द वर्ड्स. और इसमें से भी कुछ स्पेशल से जो आपको याद ही करना है. जैसे यहाँ पर आस्क था, जो ये आपके माइंड में होने चाहिए. तो आस्क, फॉरबिड, कीप, गिव अप, क्विट एंड लेट, ये कुछ नए, और मेक, ये कुछ वर्ड्स है जो आपको अलग से याद करना पड़ेगा. बाकी आई थिंक बहुत ही आसान है. स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना. स्टॉप का मतलब होता है बंद करना. एंजॉय, लाइक, लव, हेट, प्रीफर, हेल्प, ये सारे आसान है. इज दैट क्लियर? यस. So it should be easy. Okay, next question for you, and that's gonna be like let's have a look at the rules.
मुझसे नफरत मत करो, क्या बोलोगे? मुझसे नफरत मत करो। डोंट मुझसे नफरत मत करो, हाउ विल यू से? डोंट हेट मी, खत्म। हेट मतलब होता है नफरत करना। तो मुझसे नफरत करो तो हेट मी, मुझसे नफरत मत करो डोंट हेट मी। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कोई भी काम करने के लिए आप डायरेक्टली वर्ब लगा दोगे, कोई भी काम ना करने के लिए डोंट लगा दोगे। मैंने बोला मुझसे नफरत कर तो आप बोलोगे हेट मी, मुझसे नफरत मत करो डोंट हेट मी, प्लीज हेट मी, ऑलवेज हेट मी, नेवर हेट मी। इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। राम को आने के लिए कहो, राम को आने के लिए कहो। आस्क राम टू कम। आस्क राम टू कम। राम को डांस करने के लिए कहो। आस्क राम टू डांस। आस्क राम टू डांस। राम को खाना बनाने के लिए कहो क्योंकि हम भूखे हैं। आस्क राम टू कुक फूड बिकॉज वी आर हंग्री। आस्क राम टू कुक फूड बिकॉज वी आर हंग्री। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये भी बोल सकते हो से टू राम टू कुक फूड बिकॉज वी आर हंग्री, या तो टेल राम टू कुक फूड बिकॉज वी आर हंग्री। All these sentences are going to be correct, but ask is being used the most. So you will mainly see the sentences using ask, so that is why I'm using it too. Okay? Yes. That's really awesome. Let's go ahead next question, and that's gonna be like, चलो चले यार, Let's go. चलो खाना खाएं, Let's eat food. चलो मोबाइल पे फ्री फायर खेले, Yes, sir. चलो मोबाइल पे फ्री फायर खेले, फ्री फायर। Let's play Free Fire on the mobile. लेट्स प्ले फ्री फायर ऑन मोबाइल। ओके, मेरे 200 दोस्त हैं। I have 200 friends. आई हैव 200 फ्रेंड्स। मेरे इंस्टाग्राम पे 200 दोस्त हैं। I have 200 friends in my Instagram. आई हैव 200 फ्रेंड्स ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है ना, ऑन इंस्टाग्राम, दी मत लगाना, ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स इनफ। तो आई हैव 200 फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम। तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। You have nothing but money. यू विल हैव इन फ्यूचर, तो यू विल हैव नथिंग बट मनी, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, दैट्स रियली ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है, अब बोलने का कोई फायदा नहीं। It is no use to speak. इट इज़ नो यूज स्पीकिंग। इट इज़ नो यूज के बगल में आप हमेशा वर्ब के साथ ing लगाते हो। सो इट इज़ नो यूज स्पीकिंग, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है, अब हल्ला करने का कोई फायदा नहीं है। क्या It बोलूं? is no use. It is no use to speak. Speaking. जस्ट अ मिनट, कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने बोला बोलने का कोई फायदा नहीं, तो आप बोलोगे इट इज़ नो यूज स्पीकिंग, सिंपल, इट्स नो यूज। अच्छा, यहाँ पर ये भी बोल सकते हो इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है, या तो बोलो इट्स नो यूज स्पीकिंग, बोलने का कोई फायदा नहीं है, या तो इट्स ऑफ नो यूज स्पीकिंग। अल्टीमेटली इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अब मैंने बोला अब हल्ला करने का कोई फायदा नहीं, मतलब इट्स नो यूज मेकिंग नॉइज राइट नाउ, It's no use making noise. इट्स नो यूज मेकिंग अ नॉइज राइट नाउ। वेल, कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आप बना दोगे, प्रीटी मच इजी पीजी। एंड लेट्स गो थ्रू द अदर रूल्स टू। ये भैया नेक्स्ट, मेरी गाना गाने में मदद करो। Help. मदद करो. या मेरी गाना गाने में मदद करो। हेल्प मी सिंग अ सॉन्ग, सिंपल। Help me to sing a song. किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आए, शुरू करो, लास्ट में जाओ, वापस आओ। इन दिस वे दैट्स गोना बी इजियर, बट दिस सेंटेंसेस आर प्रीटी मच इजी। ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो मेरी गाना गाने में मदद करो, हेल्प मी सिंग अ सॉन्ग। राम की कूदने में मदद करो। Help. अरे भैया, राम की कूदने में मदद करो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मदद करो मतलब हेल्प, किसकी मदद करो? राम की, तो हेल्प राम टू जंप, इजी है। अरे इसमें मत अटकना यार। मैंने बोला राम की कूदने, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर हेल्प के बाद वर्ब के बाद डायरेक्ट उसको लगा दीजिए। डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पर टू लगाओ ना लगाओ, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो जब भी किसी की मदद करोगे वहाँ पर हेल्प लगा दोगे। अब मैंने बोला राम की कूदने में मदद करो, हेल्प राम जंप, ये तो हेल्प राम टू जंप, बोथ ऑप्शंस आर गोना बी राइट ओवर देयर। ऐसे मैंने बोला कि यार देखो उसकी सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करो, तो क्या बोलोगे? हेल्प फॉर अब सीढ़ियाँ चढ़ना मतलब क्लाइंब करना, ठीक है ना। टू क्लाइंब. हेल्प हर क्लाइंब, एग्जैक्टली, हेल्प हर क्लाइंब द स्टेयर्स, या तो हेल्प हर टू क्लाइंब द स्टेयर्स। इस तरीके से आप बना दोगे। एंड दिस सेंटेंसेस आर गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। Well, talking about the examples right now, you can get a lot of examples in the book, so you had better practice all of them. If first of all ये आपके सारे rules हो गए।
आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आपके सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लाइक गो, डोंट गो, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एंड देन आस्क, तो सपोज आस्क क्वेश्चंस, डोंट आस्क क्वेश्चंस, प्लीज आस्क क्वेश्चंस with Hindi meaning you will be getting all these questions over here. So you have to do only one thing, just practice all these examples and then in this way you will be learning. Is that clear? Yes sir. और जब आप पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लोगे, एक सेंटेंस दिया और उसको सभी में बना देना, लेट्स तक बनाना है। सपोज ये सेंटेंस दिया, अब यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे। सपोज मैंने बोला टेक आउट द ट्रैश, मतलब कचरा बाहर निकालो, टेक आउट द ट्रैश। देन डोंट टेक आउट द ट्रैश, प्लीज टेक आउट द ट्रैश, ऑलवेज टेक आउट द ट्रैश, नेवर टेक आउट द ट्रैश, आस्क हिम टू टेक आउट द ट्रैश, ऑर्डर हिम टू टेक आउट द ट्रैश, forbid him to take out the trash. Is that clear? Are you getting that? हम बना कैसे रहे, हम सभी में बना रहे हैं। And then try to take out the trash, go to take out the trash, keep taking out the trash, start taking out the trash, stop taking out the trash. So ultimately जितने भी रूल अभी तक हमने यहाँ से देखे 1 नंबर से 3rd नंबर तक, उन सारे के सारे रूल्स को हम कवर कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। Yes sir. Okay, that's really awesome. So in this way exactly you have to just keep going. So and all the examples are given here: close the door, open the window, cook dinner, clean the house, brush your teeth, make your bed, water the plants. Water मतलब पानी देना होता है, water the plants, call your girlfriend, watch cartoons, write a letter, read a book, text your friend. इतने सारे सेंटेंसेज हैं। अब इन सेंटेंसेज को करना क्या है, एक सेंटेंस को लेना और सभी में बना देना, जितने भी सेंटेंस अभी तक हमने लिए। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. Yes. So there are all pluck the flower, celebrate Diwali, celebrate your birthday, listen to music, buy some milk, paint the room, sweep the floor. There are so many examples. अगर आप इन सारे examples की प्रैक्टिस कर लोगे, फ़ायदा क्या होगा इनका, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में एक नया वर्ड आ रहा है। सो इफ़ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, सर माई vocab is not strong, so if you practice in this way you will learn the vocab first. Second, while learning the vocab you will practice the sentences. So whenever you are gonna speak in public, at that time sentences are gonna be coming into your mind automatically, they are coming out of your mind automatically, so you won't have to worry about anything at all. Is that clear? Yes. Yes, This sir. is the second option. So first vocab strong होगा, second sentence automatically आएंगे जब आप public में बोलोगे, last but not the least your fluency will increase because you are practicing the same sentence over and over, at least 5 times एक sentence को practice करना। like अगर कोई sentence given है, otherwise एक sentence given है तो उसको सभी में बना दो। ओके तो जब उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, यू विल बी इजिली एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, एंड इफ यू आर एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स इजिली, विच मीन्स ऑफ कोर्स यू आर अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स इफ यू जस्ट प्रैक्टिस इन दिस वे. सो कीप इन माइंड, आगे मूव करते हैं. तो अभी तक हमने इन सारे देख लिया, ठीक है ना. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो. एक एग्जांपल को लेते हैं, सभी को गो थ्रू कर लेते हैं. सपोज मैंने बोला कि स्वीप द फ्लोर, फर्स्ट पे झाड़ू लगा दो, ठीक है ना. तो फर्स्ट पे झाड़ू लगाओ, स्वीप द फ्लोर. फर्स्ट पे झाड़ू मत लगाओ, ट्रांसलेट इट. Don't sweep the. Don't Sweep the floor. डोंट स्वीप द फ्लोर. देन प्लीज कृपया कमरे में झाड़ू लगाओ. क्या बोलोगे? कमरे में. Please sweep the floor. ओके फर्स्ट पे तो प्लीज स्वीप द फ्लोर. एंड हमेशा फर्श पे झाड़ू लगाओ. Always sweep the floor. ऑलवेज स्वीप द फ्लोर. एंड वन बाय वन यू गाइस हैव टू आंसर देम. तो शिव, अभिषेक एंड जय इन दिस वे. तो नेक्स्ट फॉर अभिषेक, कभी भी फर्स्ट पे झाड़ू मत लगाओ. Don't sweep the floor. नॉट रियली. कभी भी के लिए, कभी भी नहीं के लिए आप नेवर का यूज करोगे, तो आपको कहना चाहिए नेवर स्वीप द फ्लोर. इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट फॉर जय. कमरे में फर्स्ट पे झाड़ू लगाने के लिए राम को कहो यार. Ask Ram to clean the floor. आस्क राम टू स्वीप द फ्लोर. फोकस व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. तो राम को कमरे में झाड़ू लगाने के लिए कहो. तो झाड़ू लगाना मतलब स्वीप, तो आस्क राम टू स्वीप द फ्लोर. एंड राम को कमरे में झाड़ू लगाने का आदेश दो अभिषेक, सॉरी शिव. Order Ram to sweep the floor. ऑर्डर राम टू स्वीप द फ्लोर. एंड इन दिस वे यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस एट होम. राम को कमरे में झाड़ू लगाने से मना करो, सॉरी फर्श में झाड़ू लगाने से मना करो. Forbid Ram sweep. ओके एग्जैक्टली. फॉरबिड राम टू स्वीप द फ्लोर. सिंपल. कमरे में झाड़ू लगाने का ट्राई करो यार. जय वेयर आर यू लॉस्ट? कमरे में झाड़ू लगाने का, सॉरी फर्श में झाड़ू लगाने का ट्राई करो. Try to sweep the floor. फर्श में झाड़ू लगाने के लिए जाओ. Go to sweep the floor. गो टू स्वीप द फ्लोर. फर्श पे झाड़ू लगाते रहो. Keep sweeping the floor. कीप स्वीपिंग द फ्लोर, या तो आप ये भी बोल सकते हो कीप ऑन स्वीपिंग द फ्लोर. इज दैट क्लियर? Yes. ओके सो कीप स्वीपिंग द फ्लोर, कीप ऑन स्वीपिंग द फ्लोर, बोथ दी ऑप्शंस आ रही है. नेक्स्ट कमरे में झाड़ू लगाना शुरू करो. Start sweeping the floor. ओके स्टार्ट स्वीपिंग द फ्लोर, दैट्स राइट.
apart from it how can you translate this sentence? This is one way. Second way to translate the sentence, begin to sweeping the floor. begin to sweep the floor. वहां पर टू आ गया इसलिए आप स्वीप लगाओगे. इज दैट क्लियर? Yes. तो आप सिंपली बोलोगे begin to sweep the floor, कमरे में झाड़ू लगाना शुरू करो. देन कमरे में झाड़ू फर्श पे झाड़ू लगाना बंद करो. एक कमरे इज कमिंग ओवर एंड ओवर. फर्श पे झाड़ू लगाना बंद करो. स्टॉप स्वीपिंग द फ्लोर. स्टॉप स्वीपिंग द फ्लोर. देन फर्श पे झाड़ू लगाना छोड़ दो. Give up. जय, इट्स नॉट योर टर्न. Sweeping the floor. गिव अप स्वीपिंग द फ्लोर, या तो आप बोल सकते हो क्विट स्वीपिंग द फ्लोर. देन कमरे में झाड़ू लगाना पसंद करो. Like. Sweeping the floor. लाइक स्वीपिंग द फ्लोर. एंड कमरे में झाड़ू लगाना बहुत पसंद करो. एक कमरे में फ्लोर, अजीब सा सेंटेंस है यार, कमरा बार बार आता है माइंड में. ओके, फर्स्ट पे झाड़ू लगाना बहुत पसंद करो, क्या बोलोगे? Prefer sweeping the floor. प्रीफर स्वीपिंग द फ्लोर. अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि लाइक, प्रीफर, सॉरी लाइक, लव, हेट, प्रीफर, ये जो 4 वर्ड्स हैं, इनके बगल में टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, और अगर चाहो तो वर्ब के साथ एनजी भी लगा सकते हो. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. मुझे झाड़ू लगाने दो. Let me Let me sweep. लेट मी स्वीप. और चलो झाड़ू लगाए. let's लेट्स स्वीप. सिंपल सी बात है. इन सारे एग्जांपल्स से आप घर में प्रैक्टिस कर लेना. आई थिंक वी हैव प्रैक्टिस इनफ राइट नाउ. द थिंग यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड ओवर हियर कि लेट की जगह पर अलाउ का भी यूज कर सकते हो. जब मैं बोलूँ कि मुझे झाड़ू लगाने दो, तो या तो बोल दो लेट मी स्वीप, या तो आप बोल सकते हो अलाउ मी टू स्वीप. इज दैट क्लियर? और यहाँ पर लेट मी का शॉर्ट फॉर्म होता है लेमी. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो द शॉर्ट फॉर्म, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट मी इज लेमी. इज दैट क्लियर? ऑल राइट जय, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग नॉइज. ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. सो कहीं पर भी आपको लेट मी बोलो तो वहाँ पर लेमी बोल दो. लाइक मुझे जान दो, लेमी गो, मुझे खाना खाने दो, लेमी ईट फूड, लेमी प्रैक्टिस, लेमी स्लीप, लेमी डांस, लेमी टॉक टू यू, व्हाटएवर. इज दैट क्लियर? Yes. चलो जी, सो अल्टीमेटली आपने सारी चीजें देख लिया. हम आगे मूव करते हैं रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 में. कल से स्टार्ट होगा आपका टेंस, सो गेट रेडी फॉर दैट थिंग. उसके लिए आपसे वर्ब्स भी अच्छे से आना चाहिए. सो आर यू गाइस रेडी राइट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's really awesome. So let's go ahead. And here we didn't really ask a lot of questions because I have been asking questions verbally, and that's pretty much enough. Okay, let's go ahead. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर 4th एंड 5th रूल को, जिसमें से मैंने बताया था आपको. अब थोड़ा बताना आप इनकी मीनिंग. कहीं पर भी आस्क आ जाए उसका मतलब क्या होगा, उसको भी छोड़ो. कहीं पर कहना बोलूँ तो क्या बोलोगे? कहना. Ask. कहने के लिए आप यूज करोगे आस्क का. जय, यू डोंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस बिकॉज यू ऑलरेडी नो. सो इट्स मेनली फॉर अभिषेक एंड शिव. तो कहना हो गया आस्क. देन आगे मूव करते हैं मना करना. मना करना. मेक इट क्विक. मना करना. सर, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. फॉरबिड टू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. करते रहना. Yes, sir. करते रहना. कीप पे यूज करो या तो कीप ऑन के यूज करो. यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, बगल में वर्ब के साथ एनजी आप लगाओगे ही लगाओगे. लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी लाइक. छोड़ देना. Give up. Give up. Give up food. अब देखा, यहाँ पर किसी काम को करना छोड़ दोगे, ठीक है ना? तो किसी काम को अगर करना छोड़ देते हो, Yes, sir. ये तो किसी चीज़ पे प्रयास मतलब वर्क करना छोड़ देते हो, वहाँ पर हो जाएगा गिव अप, या तो क्विट का यूज कर सकते हो. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ये वर्ड्स आपके माइंड में होना ही चाहिए. आगे बढ़ते हैं. देन करने देना भैया. क्या सर? करने देना. let me लेट प्लस कॉमा प्लस वर्ब आ जाएगी. सिंपल सी बात है. किसी को कोई काम करने देते हो, वहाँ पर सिंपली लेट को यूज कर दो, और ये सारी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं? मेन वर्ब. लास्ट बट नॉट द ऑप्शन, कि अगर कोई से आप काम करवाते हो, करवाना, तो क्या बोलोगे? मेक. सिंपल सी बात है. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अगर किसी से कोई काम करवाते हो, वहाँ पर मेक का यूज करोगे, और आपको पता है कि मेक के बगल में किसी का नाम आएगा, और फिर लास्ट में वर्ब आ जाएगी. सिंपल सी बात है. तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि राम से गाना गब्बाओ, तो क्या बोलोगे? मेक राम सिंग अ सॉन्ग. सिंपल सी बात है. किसी से कोई काम करवाओगे, वहाँ पर मेक का यूज कर दोगे. तो भाई सिंपली गिव यू अ सेंटेंस लाइक गाना गाओ, तो आप बोलोगे सिंग अ सॉन्ग. एक गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग. और अगर मैं बोलता हूँ कि राम से गाना गब्बाओ, तो आप बोलोगे मेक राम सिंग अ सॉन्ग. एनी कंफ्यूजन? No. मैंने बोला भैया इंग्लिश बोलो, तो आप बोलो क्या बोलोगे? इंग्लिश बोलो. English. स्पीक इंग्लिश बहुत ही सिंपल है. तो स्पीक इंग्लिश बोलो. और मैंने बोला इंग्लिश मत बोलो. डोंट स्पीक इंग्लिश निगेटिव तो आसानी से बन जाएगा. मैंने बोला कि मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, अगर तुम बुलवा सकते हो. Make me speak. मेक मी स्पीक इंग्लिश. अगर अब ध्यान देना, जब आपने बोला ना कि मेक मी स्पीक इंग्लिश, तो वहां पर मेक मेन वर्ब है. क्या है?
मेन वर्ब मेन वर्ब है, और जो स्पीक आया है वो सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है ना। तो मेक मेन वर्ब मेक हो गई, मतलब कभी अगर टेंस में जाओगे तो आईएनजी लगाओगे तो मेक में लगेगा, थर्ड फॉर्म लगाओगे तो मेक में लगेगा, आई स्पीक में ही लगेगा। यहाँ पर स्पीक सेकेंडरी वर्ब है। इज दैट क्लियर? यस Yes. ओके, तो मुझसे इंग्लिश बुलाओ, मेक मी स्पीक इंग्लिश। अगर तुम मुझसे बुलवा सकते हो, क्या बोलोगे? If you can यू कैन me. मेक मी स्पीक। Yes. अब यहाँ पर अगेन मेक को हम एज अ मेन वर्ब ट्रीट करें, कैन के बगल में लगाने, यस और नो? Yes. तो मेक मी स्पीक इंग्लिश इफ यू कैन मेक मी स्पीक, अगर तुम मुझसे बुलवा सकते हो। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक राम से दौड़वाओ, राम से दौड़वाओ। रन मेक राम राम, मेक राम रन, राम को रोड पे दौड़वाओ। Make Ram run on the road. मेक राम रन ऑन द रोड, कुछ इस तरीके से। राम को रोड पर मत दौड़वाओ। Don't Don't make a डोंट मेक राम रन ऑन द रोड। इज दैट क्लियर? तो डोंट मेक राम रन ऑन द रोड, राम को रोड पर मत दौड़वाओ। एंड अच्छा, टेल मी वन थिंग, विच ऑप्शन इज बेटर, डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चंस और टाइपिंग देम अलोंग आस्किंग क्वेश्चंस? डायरेक्टली लाइक आपके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अभी नए सीख रहे हैं उनके लिए कौन सा बेहतर है? मैं टाइप भी करता जाऊँ साथ साथ में, सो दैट आप बाद में प्रैक्टिस कर सको, कि बस डायरेक्टली पूछ लो। Both are better, sir. So which one is better? Like both are good, but which one is better? Tell me. Sir, बोल कर आप पूछिए बस. बोल कर. Okay. Otherwise, I will just do one thing. Along with asking questions, I'll be typing them. It's not gonna take a lot of time. Don't worry. I have quite good typing speed, so it's gonna be done soon. Okay. आगे मूव करते हैं. एंड देन बिकॉज आई थिंक एट द एंड यू नीड सम क्वेश्चंस टू, जो भी यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछूंगा तो वो आपके माइंड में होने चाहिए, बाद में प्रैक्टिस भी कर सकूँ उनकी, तो उसके लिए आई थिंक राइटिंग इज इट गेट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक मेक अ यूज हो ही गया, किसी भी कोई काम करवाओगे तो देन उससे अपना होमवर्क करवाओ. मेक हर डू योर होमवर्क, मेक हर डू योर होमवर्क, उससे अपना होमवर्क करवाओ, ठीक है ना. ऐसे ही सीता से अपना घर साफ करवाओ. मेक सीता मेक सीता क्लीन योर रूम, मेक सीता क्लीन योर रूम, कुछ इस तरीके से आप बना दोगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. तो आपने पहला रूल क्या देखा? पहला रूल आपने देखा मेक, और सिंपल सी बात है, कहीं पर भी किसी से कोई काम करवाओगे यहाँ पर लगा दोगे. मेक के बगल में नेम आएगा मेनली, और उसके वर्ब के बगल में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ही आता है, यस और नो. यस तो मेक फिर मेक के बगल में नाम आएगा जिससे भी काम करवाते हो, फिर वर्ब आपको पता ही है. अब वर्ब के बगल में क्या आता है? सब्जेक्ट के वर्ब के बाद में आप ऑब्जेक्ट आता है. सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लग जाएगा. इन सारे सेंटेंस में देखना सब्जेक्ट यू होता है. जैसे मैंने बोला कि सीता से खाना बनवाओ, तो कौन खाना बनवाएगा? तुम खाना बनवाओगे, यस और नो. यस तो इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट यू होता है. और इसीलिए जब हम इनका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर हम डोंट लगाते हैं, डज नहीं लगाते हैं. सबसे पहले जब मैंने बोला कि सीता से खाना बनवाओ, मतलब अभी बनवाओगे, तो प्रेजेंट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब में डू डज लगना चाहिए. लेकिन डू ही क्यों लगता है? हम डोंट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू. इज दैट क्लियर? जो कि है नहीं, दिख नहीं रहा, लेकिन है, और इसीलिए फिर वहाँ पर हम डोंट लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस में. इज दैट क्लियर? यस तो मैंने बोला सीता से खाना बनवाओ, तो आप बोलोगे मेक सीता क्लीन रूम. कौन खाना बनवाएगा? तुम खाना बनवाओगे. कब खाना बनवाओगे? अभी प्रेजेंट में खाना बनवाओगे. तो हेल्पिंग वर्ब डू डज लगना चाहिए. यहाँ पर डू लगेगा, क्यों? क्योंकि यू है, तुम बनवाओगे. तो डोंट मेक सीता क्लीन योर रूम. इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से इसका निगेटिव बना दोगे. बात करते हैं सेंटेंस का, तो ये पर्टिकुलर आपका रूल हो गया. आगे बढ़ते, सेम सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो. गेट टू लगाओगे, उसके पहले वर्ब लगा दोगे, फिर ऑब्जेक्ट तो आता ही रहेगा. और हैव वर्ब और डायरेक्टली यहाँ पर लगा दोगे. तो अल्टीमेटली तीन रूल है, तीनों सेम ही चीज़ को बताते हैं. इज दैट क्लियर? यस तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भैया देखो, सपोज द सेंटेंस इज कि राम से खाना बनवाओ, सिंपल सी बात है, राम से खाना बनवाओ, या तो हमसे खाना बनवाओ, तो आप बोलोगे मेक अस कुक फूड. पहला तो ये हो गया, मेक अस कुक फूड. सेकंड सेंटेंस को ये भी बना सकते हो, गेट अस टू कुक फूड, सेम ही मीनिंग है, ठीक है ना. और आप ये भी बोल सकते हो हैव अस कुक फूड. इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल, हैव अस कुक फूड. एनी कंफ्यूजन सो फार? नो ऐसे एक और सेंटेंस दूं मैं आपको, एंड दैट्स गोना बी लाइक, अभी डिफरेंस बताऊंगा, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर जी डिफरेंस तो होगा ना, क्या है बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला उससे टीवी दिखवाओ, उससे टीवी दिखवाओ, क्या बोलोगे? मेक हर वॉच द टीवी. इज दैट क्लियर? मेक हर वॉच द टीवी, उससे टीवी दिखवाओ, कोई टेंशन ही नहीं. उससे कोई काम करवाओगे तो वहाँ पर हर लगा दिया, फिर वॉच, और लास्ट में टीवी तो हमारा आएगा ही आएगा. तो मेक हर वॉच द टीवी, उससे टीवी दिखवाओ. आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो गेट हर टू वॉच द टीवी. गेट के साथ हमेशा टू का यूज होगा, तो गेट हर टू वॉच द टीवी. इज दैट क्लियर? यस लास्ट आप ये भी बोल सकते हो हैव हर वॉच द टीवी, हैव हर वॉच द टीवी.
तो एनी कंफ्यूजन विद दीज रूल्स, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? No. अब बात करते हैं इनमें अंतर क्या है। तो जब किसी से जबरदस्ती काम करवाओगे, फोर्सफुली, बाय द वे तीनों का यूज होता है काम करवाने के लिए, तीनों का यूज होता है काम करवाने के लिए। जब किसी से जबरदस्ती काम करवाओगे, फोर्सफुली काम करवाओगे विद फोर्स, एट दैट टाइम मेक इज यूज्ड, ठीक है ना। जब किसी को मनाकर कोई काम करवाओगे, वहां पर आप गेट का यूज कर दोगे, कन्विंस, ठीक है ना। और जब किसी से प्रोफेशनली कोई काम करवाओगे, सपोज उसका काम ही वो काम करना है, सपोज आप नाई के पास गए और उसे बाल कटवा लिए, ठीक है ना, व्हाटएवर, तो वहाँ पर उसे जबरदस्ती भी नहीं करोगे, ना तो उसे मनाओगे, उसको सिंपल काम करवा लोगे। तो जब किसी प्रोफेशनल से काम करते हो, जब काम असाइन कर देते हो, असाइन मतलब होता है दे देना, तो जब काम असाइन कर देते हो वहाँ पर आप यूज करोगे हैव का। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। चलो बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा मेक यूज होता है, उससे फिर कम गेट यूज होता है, उससे कम हैव का यूज होता है। अगर आप ज़्यादा देखोगे ना रियल लाइफ में कैसे हम यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा तो हम मेक ही लगा देते हैं, मेक हिम कम, मेक हिम डू दैट, व्हाटएवर, ठीक है ना, मेक हिम क्राई, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेक यूज होता है। और सिंपल लाइफ में भी देखो, हम ज़्यादा डायरेक्टली काम करवा लेते हैं, बहुत कम ही हम मनाते हैं। हम किसको मनाएंगे काम करने के लिए? आज हम डायरेक्टली कहते हैं भैया ये काम कर, ठीक है, और फिर बहुत ही कम हम काम को असाइन करते हैं। सो इट शुड बी इजी। एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो भैया एक और सेंटेंस ले लो और इस सेंटेंस को अब आपको बनाना है। नाउ आई एम नॉट गोना ट्रांसलेट दैट सेंटेंस एंड दैट सेंटेंस इज गोना बी प्रीटी मच इजी। मैंने बोला कि देख भाई उनसे गाना गब्बा, एक से ज़्यादा लोग हैं और उनसे गाना गब्बाओ, क्या बोलोगे? मेक देम सिंग अ सॉन्ग, मेक देम सिंग अ सॉन्ग, सिंपल। कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? No. ओके, तो मेक देम सिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही और क्या बोल सकते हो सेम सेंटेंस को? गेट देम टू सिंग अ सॉन्ग, गेट देम टू सिंग अ सॉन्ग, एंड वन मोर, हैव देम सिंग अ सॉन्ग। बाय द वे बुक में तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, इतने कि अगर एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो अंदर पता चल जाएगा। अभी के लिए हम आगे मूव करते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया ना। अब देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में है क्या, पहले इस सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। एक ही सेंटेंस को लेते हैं, बहुत सारे सेंटेंस को लेने का मतलब क्या है, क्योंकि तीनों सेम ही चीज बता रहे हैं ना, काम करवाना, यस और नो। तो किसी में जबरदस्ती करवा रहे हो, किसी में मना रहे हो, बट अल्टीमेटली काम करवा रहे हो, तो तीनों ही काम करवाना बता रहे हैं। तो आप सेंटेंस को अगर देखोगे तो पहला सेंटेंस हम यहाँ से लेते हैं, मेक देम सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस है, सिंग अ सॉन्ग। तो पहला वाला तो आपको रूल पता है कि रूल क्या होता है। रूल होता है पहला मेक आता है, मेक आएगा, फिर नाम आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब क्या कि ये हो गया आपका नेम जिससे काम करवाओगे। अच्छा, नेम मतलब ये भी ध्यान रखना किसी का भी नाम नहीं कि सेंटेंस में किसी का भी नाम आ गया तो हो गया, जिससे काम करवाओगे उसका नाम, ठीक है ना। Yes. फिर वर्ब तो आपको पता ही है, और इधर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बीच में आ गया नेम और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? No, sir. दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब अच्छे सुनना, एक और रूल होता है, उस रूल की बात करते हैं। यहां पर वो रूल क्या है, पहला आता है गेट, नए रूल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो गेट लगाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जगह छोड़ो, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगा दो, और फिर यहाँ पर जगह छोड़ो। इसमें अंतर क्या होने वाला है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और जो ये नेम है वो बाद में चला जाएगा, मतलब सेम ही रहेगा। अगेन रिपीटिंग, मतलब इस सेंटेंस को कोई मतलब चेंज नहीं आ रहा। बस क्या हो रहा है कि सेंटेंस को सेम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो मेक में बना है वही सेंटेंस को आप ये भी बोल सकते हो, गेट ऑब्जेक्ट को पहले लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाई लगाओ और नेम को लास्ट में लगा दो, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। इज दैट क्लियर? Yes. चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहले रूल को अच्छे से क्लियर कर दूँ। वन मोर टाइम ओवर हियर। तो मैंने बोला पहले 3 रूल को देख लो अच्छे से, कौन कौन से रूल है। पहला रूल आपने देखा, मेक, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो आपको पता ही। ऐसे गेट टू के साथ वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही आपने बोला हैव, देन वर्ब, जस्ट अ सेक, वर्ब लगाओ और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगा दो, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकी है। No. चलो, तो अल्टीमेटली यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, बीच में भैया हमारा नाम आ रहा है, नेम आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं, काम करवाने की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेम सेंटेंस को अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस आ जाए, इस तरीके से भी बना सकते हो। गेट लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ठीक है ना, बाई लगाओ। अब बाई ऑप्शनल, नाम लगाना तो बाई लगा दो, अदरवाइज बाई मत लगाओ, ठीक है ना। और फिर ये लगा दो, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हैव भी लगा सकते हो, हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय द वे गेट और हैव में कोई अंतर नहीं, लास्ट वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और फिर ऑब्जेक्ट लगा दो, बस तरीके आई मीन डिफरेंस है बनाने में अलग अलग। बस आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड ये हो गया थर्ड वाला रूल जो आपने देखा, सॉरी फोर्थ वाला रूल।
जो आपने बुक में देखा था, ये हो गया फिफ्थ वाला रूल। अंतर दोनों में कोई नहीं है, दोनों ही काम करवाने के लिए यूज होते हैं। ये भी काम करवाने के लिए यूज होता है। जब भी काम करवाओगे तो या तो पहले वाले में बना दो या तो दूसरे वाले में बना दो। अंतर क्या है ये देखो, पहले वाले में पहले नेम आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है, जो दूसरा वाला रूल है उसमें पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर नेम आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब बारी आई सेंटेंस को ट्रांसलेट करने को, तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस सेम ही लेते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने बोला मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, तो आप क्या बोलोगे? मेक मी स्पीक इंग्लिश, यस और नो? यस मेक मी स्पीक इंग्लिश, मुझसे इंग्लिश बुलवाओ। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे इससे कुछ कोई खास बोलता नहीं, सिंपल सी बात है। मेक मी कुक फूड लेते हैं। मुझसे इंग्लिश तुम क्या बुलवाओगे? मैं खुद बोलूँगा मेक मी कुक फूड, ठीक है ना? मुझसे खाना बनवाओ, मुझसे खाना बनवाओ, मेक मी कुक फूड। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो गेट मी टू कुक फूड, या तो आप बोल सकते हो हैव मी कुक फूड, हैव मी कुक फूड, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से तीनों सेंटेंस बन गए। सेम सेंटेंसेस को आप ये भी बोल सकते हो गेट फूड कुक्ड बाय मी, ठीक है ना? कुक द फूड बोल दो, क्योंकि खाना बनवाओगे तो पता है कौन सा खाना बना रहे हैं। तो गेट मी टू दा 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 क्यों, जब आगे चल के हम देखने वाले हैं। तो गेट द फूड कुक्ड बाय मी, इज दैट क्लियर? और यहाँ पर सेम सेंटेंस को ये भी बोल सकते हो हैव द फूड कुक्ड बाय मी, मतलब सेम ही है, कोई टेंशन ही नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. तो कोई भी सेंटेंस इस तरीके से साइंस बना सकते हो। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने बोला मम्मी मम्मी से रूम साफ करवाओ, क्या बोलोगे? गेट मेक मॉम, स्टार्ट करता है शुरू से, मेक मॉम क्लीन द रूम। पहला तो यही हो गया कि मेक मॉम क्लीन द रूम। आप ये भी बोल सकते हो, कम ऑन कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग। गेट गेट मॉम टू क्लीन द रूम क्लीन बाय मॉम। हाँ सर, वो उसमें भी जाएंगे। पहले हम नॉर्मल बना ले, तो मेक मॉम क्लीन द रूम, गेट मॉम टू क्लीन द रूम, या तो हैव मॉम क्लीन द रूम, हैव मॉम क्लीन द रूम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस वाले में चलते हैं। आप बोल सकते हो गेट द रूम क्लीन्ड बाय मॉम, क्लीन्ड बाय मॉम, या तो आप बोल सकते हो हैव द रूम क्लीन्ड बाय मॉम। इज दैट क्लियर? Yes. बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, ज़्यादा कोई टेंशन इसमें होनी चाहिए। बात करते हैं दोनों में अंतर क्या। अगेन दोनों में बन तो सकते हो, तो हमें पता है। लास्ट में आपने रूल भी देख लिया, दैट्स रियली ऑसम। अगर हम रूल की बात करें, दैट इज लाइक पैसिव वॉइस बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली पैसिव वॉइस। चलो, तो ये हो गया, आपने करवाने वाला सेंस देखा। तो ये सारे रूल्स जो आपको पहले से ही पता है। करवाने के लिए दोनों, फोर्थ नंबर का भी यूज कर सकते हो, फिफ्थ नंबर का भी यूज कर सकते हो। अंतर सिर्फ इतना है कि फोर्थ नंबर में पहले नेम आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिफ्थ नंबर में पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर नेम आएगा। अब यहाँ पर दोनों में अंतर की बात करते हैं, अच्छे से देखना। यहाँ पर पहला वाला आपने रूल देखा, मेक आया, वर्ब आया कुछ इस तरीके से, गेट आया, टू के साथ वर्ब आया और फिर ऑब्जेक्ट आया, और हैव आया। दोनों में अंतर की बात की कि दोनों में अंतर क्या, वर्ब आया ऑब्जेक्ट आया। पहला रूल ये हो गया। दूसरे रूल की बात करें तो हमने देखा गेट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आया और फिर बाई आ गया, ठीक है। और इसमें हैव आया, दोनों का मतलब सेम है, डोंट वरी अबाउट इट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, बाई आया। अच्छे सुनना, अंतर के देखो, पहले सब्जेक्ट सेंटेंस में पहले नेम आ रहा है। अगेन पहले सेंटेंस में पहले नेम आ रहा है, बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे रूल में क्या हो रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है और बाद में नेम आ रहा है। अच्छे सुना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इनमें अंतर होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला पहला, अगर पहले रूल का यूज कर रहे हो, मतलब रूल नंबर 4 की यूज कर रहे हो, तो नेम आना ही चाहिए। जो पहले आता है ना वो कंपलसरी होता है, जो बाद में आता है उसको रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पहले आया वो कंपलसरी होगा। तो मैं कहा कि जब पहले फोर्थ नंबर रूल का यूज करोगे, मतलब गेट, मेक और गेट और हैव का यूज करोगे, वहां पर नेम होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होना हो चलेगा। इज दैट क्लियर? तो पहले वाले रूल का अगर यूज करोगे तो वहां पर नेम कंपलसरी है, नाम होना ही होना चाहिए। और अगर सेकंड वाले रूल के यूज कर रहे हो तो वहां पर ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अगर नाम मिल गया आपको सेंटेंस में तो पहले फोर्थ नंबर रूल में बना दो, अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो फिफ्थ नंबर रूल में बना दो, और नेम और ऑब्जेक्ट दोनों मिल गए तो किसी में भी बना सकते हो। यस और नो? Yes, sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको नेम मिल गया, नाम मिल गया, कि आपको लगता है कि भैया जिससे काम करवा रहा हूं उसका नाम है, तो सिंपल मेक में बना दो, मेक गेट और हैव में बना दो। अगर नाम नहीं मिला, सिर्फ ऑब्जेक्ट मिला, तो आप गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना दो। और इन केस आपको नाम भी मिल गया, आपको ऑब्जेक्ट भी मिल गया, तो चाहे मेक में बनाओ चाहे गेट में बनाओ, आपकी चॉइस है। इज दैट क्लियर? चलो, अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स को लेते हैं और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। पहला एग्जांपल और आपको बताना है कि उसमें नेम है, ऑब्जेक्ट है, कि नेम और ऑब्जेक्ट दोनों है। इज दैट क्लियर? पहला एग्जांपल एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैंने बोला भैया टीवी रिपेयर करवाओ, सॉरी मैकेनिक से टीवी रिपेयर करवाओ, क्या बोलोगे? Get my मेक
मेक द मैकेनिक रिपेयर द टीवी, ठीक है ना, मेक द मैकेनिक रिपेयर द टीवी। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? सॉरी, या मेक द मैकेनिक रिपेयर द टीवी। अब ये बताओ क्या क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, नेम है कि ऑब्जेक्ट नेम दोनों है? और नहीं दोनों। ऑब्जेक्ट नेम दोनों है, मतलब दोनों में बन जाएंगे, दोनों रूल में बन जाएंगे, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो मेक द मैकेनिक रिपेयर द टीवी, या तो आप बोल सकते हो गेट द मैकेनिक टू रिपेयर द टीवी, बहुत इंपॉर्टेंट, टू रिपेयर द टीवी। या तो आप बोल सकते हो हैव द मैकेनिक मैकेनिक रिपेयर द टीवी। अब यहाँ पर वो सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा है? रिपेयर द टीवी। अगर मैकेनिक वाली मैं सिचुएशन लेता हूँ कि भैया मैकेनिक से टीवी रिपेयर करवाओ, तो सबसे अच्छा सेंटेंस है तीनों में कौन सा है? मेक वाला। गेट वाला, हैव, सॉरी हैव have। वाला, क्योंकि मेक का यूज होता है जबरदस्ती करवाने के लिए, मैकेनिक से जबरदस्ती तो करोगे नहीं। गेट का यूज होता है मना कर, तो मैकेनिक को तो मनाओगे नहीं, तो वहाँ पर उसको काम असाइन करोगे, मतलब काम दे दोगे और वो काम कर देगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बाय द वे सही तीनों है, बट सबसे अच्छी की बात कर रहा हूँ रियल लाइफ में जब आप यूज करोगे वहाँ पर। आप सेम सेंटेंस को ये भी बोल सकते हो गेट, लेकिन ये पहले आ जाएगा गेट द टीवी रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, मैकेनिक, कुछ इस तरीके से। अब देखो जिसको वर्ब में दिक्कत है तो ये तो 10 डेज का चैलेंज देख सकता है, जो मैंने 10 डेज का चैलेंज यूट्यूब पे लिया है वर्ब को सीखने का, या तो हम धीरे धीरे ट्राई करेंगे वर्ब को भी कवर कर लें क्लास में, ठीक है जी। बट आई होप यू हैव द आइडिया। वर्ब को याद करने का बहुत ही आसान तरीका, 10 दिन में मेहनत कर दोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट अगेन उसको कवर करना पड़ेगा। तो अगर कन्फ्यूजन हो तो 10 डेज का चैलेंज देख सकते हो, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे लगेंगे, काम खत्म। और अदरवाइज आपको पता ही होगा कि कैसे लर्न करना, तो डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, ठीक है जी। Otherwise, we will be simply going ahead. तो get the TV repaired by the mechanic, या तो have the TV repaired by the mechanic। चलो समझ में आ गया इतना? Yes। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लो। मैंने बोला राम को दौड़वाओ, क्या बोलोगे? मेक राम रन। अब ये बताओ क्या यहाँ पर क्या क्या है? नाम है, ऑब्जेक्ट है कि नाम ऑब्जेक्ट दोनों है? ऑब्जेक्ट। बताओ इसमें क्या क्या है? Only no, आपको दो चीजें देखना है, यहाँ पर नेम है कि नहीं है और ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, या तो दोनों होंगे, तो क्या है यहाँ पर? नेम है, जिससे काम करवा रहे हो उसका नाम है, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बगल में ही आता है, अगेन रिपीटिंग, ऑब्जेक्ट के मेन वर्ब के बगल में ही आता है। तो आपने बोला कि मेक राम रन, राम से दौड़वाओ, तो भैया जिससे दौड़वाओ उसका नाम है, दौड़ेगा कौन? राम दौड़ेगा, तो उसका नाम यहाँ पर गिवन है, तो मेक राम रन बोल दिया आपने। ऐसे आप ये भी बोल सकते हो गेट राम टू रन, आप बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो हैव राम रन, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। एनी कंफ्यूजन? लेकिन इन सेंटेंसेस को आप गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं बना सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, और गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वही बनेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस सर। एक लास्ट एग्जांपल, मैंने बोला कि यार मोबाइल ठीक करवा दो, या तो मोबाइल रिपेयर करवा दो, तो क्या बोलोगे? मोबाइल रिपेयर करवा दो। अब यहाँ पर बोलो सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस दिया, मोबाइल को रिपेयर करवाओ, सिंपल सी बात है, मोबाइल को रिपेयर करवाओ, वाओ, मोबाइल को रिपेयर करवाओ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर काम किसी से करवा रहे हो, जब काम करवाओ तो आपको पता है कि रूल नंबर 4 यूज होगा, तो रूल नंबर 5 यूज होगा। अब यहाँ पर कौन सा यूज होगा? कौन से रूल का यूज होगा? फोर्थ नंबर नहीं, 5th नंबर यूज होगा। अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नाम तो है ही नहीं। मोबाइल को रिपेयर करवाओ, किससे करवाओगे? पता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? यस। तो नाम हो तो 4th नंबर में बना दो, और नाम नहीं है तो 5th नंबर बना दो। अगेन रिपीटिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड जस्ट फोकस ओवर हियर। 4th नंबर में, विच मींस मेक, गेट और है में वही रूल बनेंगे जिसमें नाम होता है। अगर किसी व्यक्ति का, करने वाले का नाम हो तो मेक, गेट और है में बना दोगे, और करने वाले का नाम नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो गेट वाले में बना दोगे, और है वाले प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले में बना दोगे। और नेम और ऑब्जेक्ट दोनों आ गए तो दोनों में बना सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला मोबाइल को रिपेयर करवाओ, किससे करवाऊं भाई? कोई है क्या? अल्टीमेटली वहां पर उसका नाम गिवन नहीं है, तो वहां पर सिर्फ इतना ही बोलोगे कि गेट द मोबाइल रिपेयर्ड, सिंपल, गेट द मोबाइल रिपेयर्ड। या तो आप बोल सकते हो हैव द मोबाइल रिपेयर्ड। एनी कंफ्यूजन सो फार? एनी कंफ्यूजन? तो ये 3 कैटेगरी आपने देखा। पहली कैटेगरी वो जहां पर आपको नेम और ऑब्जेक्ट दोनों मिल गए थे, यहाँ पर आपका नेम भी है, इन पर्टिकुलर सेंटेंस में नेम भी है आपका गिवन है, एंड ऑब्जेक्ट भी गिवन है। सेकंड वाले सेंटेंस में आपको सिर्फ नेम गिवन था। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम गिवन है कि राम को दौड़वाओ, तो राम दौड़ने वाला हो गया, वो अल्टीमेटली नेम हो गया। और जो थर्ड वाला सेंटेंस है वहां पर आपको ऑब्जेक्ट गिवन है। यस और नो?
Yes, sir. तो इन दिस वे एग्जैक्टली यू हैव टू गो अहेड। तो अगर नेम और ऑब्जेक्ट दोनों मिल गए तो दोनों बना सकते हो, सिर्फ नाम मिला तो फोर्थ वाले रूल बनाओ, और सिर्फ ऑब्जेक्ट मिला तो फिफ्थ वाले रूल में बनाओ। इज दैट क्लियर? Yes. Okay, that's really awesome. Let's go ahead. One more question I'm going to ask, and you guys have to just focus over here. And the very first question, and that's going to be like, एक घर बनवाओ। यार मुझसे एक घर बनवाओ, क्या बोलोगे? Make me. Make me build a house. Made a house. मेक मी बिल्ड हाउस। बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो मेक मी बिल्ड हाउस, बिल्ड से ही बना है बिल्डिंग, तो मेक मी बिल्ड हाउस, मुझसे एक घर बनवाओ। अब ये गेट में भी बन जाएगा, गेट और टू में भी बना सकते हो और हैव में भी बना सकते हो। यस और नो? House built by me. अब गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम मिली बनाते हैं, तो आप बोल सकते हो गेट अ हाउस बिल्ड की थर्ड फॉर्म, तो बिल्ट BUILT बिल्ट बाय मी, या तो आप बोल सकते हो हैव अ हाउस बिल्ट बाय मी। इज दैट क्लियर? Yes. हैव अ हाउस बिल्ट बाय मी। एनी कंफ्यूजन एवरीबॉडी ओवर हियर? No, sir. No, sir. चलो अब यहाँ पर अगर मैं इतना बोलूँ कि मुझसे बनवाओ, तो क्या बोलोगे? मुझसे बनवाओ, Make me. मुझसे बनवाओ, बनाओ, मेक इट, Make me. मेक मी, सिंपल, मेक मी बिल्ड, खत्म। मेक मी, मुझसे, ये तो मेक मी तो करवाने के लिए, मुझसे बनवाओ तो मेक मी बिल्ड। इज दैट क्लियर? वर्ब तो लगाओगे ना, Yes. तो मुझसे बनवाओ मेक मी बिल्ड। और अगर मैं बोलूँ घर बनवाओ, घर बनवाओ। Make. गेट द हाउस बिल्ड। अच्छे Get सुनो, the house. गेट द हाउस बिल्ड। अंतर देखो इन दोनों में, अंतर क्या आ रहा है? गेट द हाउस बिल्ड, घर बनवाओ, किसी का नाम नहीं आ रहा, सिंपल घर बनवाओ, सिर्फ ऑब्जेक्ट गिवन है यहाँ पर, द हाउस सिर्फ ऑब्जेक्ट है, और इसलिए गेट वाले में बनेगा, तो गेट द हाउस बिल्ड। तो जब मैं बोलता हूँ मुझसे बनवाओ तो मेक मी बिल्ड, लेकिन घर बनवाओ गेट द हाउस बिल्ड। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. दिस इज द मेन डिफरेंस। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन देम। बाद में एग्जांपल्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बुक में चलते हैं और एग्जांपल्स की गो थ्रू करते हैं। वेल, टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स ओवर हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हियर वी आर, लेट्स हैव अ लुक एट देम। सेंटेंस को देखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए, उससे इंग्लिश बुलाओ। अगर आपका सिंपल से क्वेश्चन उससे इंग्लिश बुलवाओ, तो आप बोलोगे मेक हिम स्पीक इंग्लिश। आप ये भी बोल सकते हो गेट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। लेकिन सेकंड क्वेश्चन, उससे बुलवाओ, तो आप बोलोगे मेक हिम स्पीक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नाम है, मेक हिम स्पीक। और इंग्लिश बुलवाओ तो आप बोलोगे गेट इंग्लिश स्पोकन। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? आगे मूव करते हैं। मुझसे दीवार पेंट करवाओ, तो आप बोल दोगे सिंपल मेक मी पेंट द वॉल। ये तो गेट द वॉल पेंटेड बाय मी, दोनों सही होंगे, क्योंकि नेम भी है मुझसे और ऑब्जेक्ट भी है दीवार। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। जब मैं बोला मुझसे पेंट करवाओ, तो सिर्फ आपका नेम है, इसलिए आप सिंपल बोलोगे मेक मी पेंट द वॉल। आप बोल सकते हो गेट मी टू पेंट द वॉल, या तो हैव मी पेंट द वॉल, तीनों बोल सकते हो। और जब सिर्फ मैंने बोला दीवार पेंट करवाओ, तो आप सिर्फ बोलोगे गेट द वॉल पेंटेड। इज दैट क्लियर? Yes. सो दिस इज मेनली द डिफरेंस। बुक में तो आपको एग्जांपल मिल ही जाएंगे, तो जस्ट मेक श्योर प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स। वन मोर सेंटेंस, उससे अपने बाल कटवाओ, तो मेक हर कट योर हेयर, या तो गेट योर हेयर कट बाय हियर, सिंपल ही है। यस और नो? दोनों में बन गए। लेकिन जब मैंने सिंपल इतना बोला कि उससे कटवाओ, तो आप बोलोगे मेक हर कट, अल्टीमेटली नाम है इसीलिए। और उससे सॉरी, ये लास्ट वाला गलत है, यहाँ पर सिंपल इतना होना चाहिए बाल कटवाओ, ठीक है ना? Yes, sir. यहाँ पर जो उससे आ गया दैट इज अ मिस्टेक। तो बाल कटवाओ तो आप बोलोगे गेट योर हेयर कट। इज दैट क्लियर? I will not make you practice a lot over here. These sentences are given here, so just practice all these examples, and all these things are gonna be clear. Is that clear? Yes, sir. उसके भी नीचे जाओगे तो सारे एग्जाम्पल है सर। पहला तो इंग्लिश बोलो तो आप बोल दोगे स्पीक इंग्लिश, उससे इंग्लिश बोलवाओ तो मेक हिम स्पीक इंग्लिश, उससे इंग्लिश बोलने के लिए मनाओ, जब आप मनाते हो तो गेट का यूज होता है, तो गेट हिम टू स्पीक इंग्लिश। और उससे इंग्लिश बुलाओ तो आप हैव हिम स्पीक इंग्लिश भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, उससे इंग्लिश बुलाओ तो आप ये भी बोल सकते हो गेट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, या तो हैव इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। यहाँ पर चाहे बोलो उससे, जस्ट अ मिनट, बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग राइट नाउ, टर्न द माइक ऑफ। तो मैंने बोला उससे इंग्लिश बुलाओ बोलो, तो उसके द्वारा इंग्लिश बुलवाओ बोलो, मतलब तो वही है। मैं बोलूँ मैं राम से इंग्लिश बुलवाता हूँ, या तो मैं राम के द्वारा इंग्लिश बुलवाता हूँ, तो अल्टीमेटली राम इंग्लिश बोलता है ना। यहाँ पर बाई लग गया, इसलिए इसको द्वारा वाला मीन भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है जी। Yes. तो या तो बोलो उससे इंग्लिश बुलाओ, या तो बोलो उसके द्वारा इंग्लिश बुलाओ, मतलब तो वही है। तो गेट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, या तो हैव इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। और सिर्फ अगर मैं इतना बोलूँ कि इंग्लिश बुलाओ, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो आप बोल दोगे गेट इंग्लिश स्पोकन, या तो हैव इंग्लिश स्पोकन। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो प्रैक्टिस ऑल दिस एग्जांपल्स एंड इन दिस वे यू विल कीप गोइंग। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम लास्ट क्या देखने वाले उसको देखो, कहीं पर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू गाइस रेडी? Yes, sir. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। मैंने बोला कहीं पर भी ईट, ईट का मतलब क्या होता है? खाना, ईट का मतलब खाना। ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना, पीना। और हैव का मतलब क्या होता है?
सॉरी, टेक का मतलब क्या होता है? मतलब लेना। टेक का मतलब लेना। दिस थिंग शुड बी क्लियर इन माइंड। तो इनका मतलब तो पता ही है। जस्ट अ मिनट, समवन राइट नाउ प्लीज जस्ट मेक श्योर इफ द साउंड इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, सो कीप द माइक ऑफ। आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोला ईट को देखा आपने, ड्रिंक को देखा, टेक को देखा। इनका मतलब पहले से पता, कहीं पर भी ये आ जाए वहाँ पर हैव लगा देना, कोई टेंशन नहीं। हैव का भी मतलब वही हो जाएगा। जैसे मैं बोला कि मैं खाना खा सकता हूँ, आप बोलोगे आई कैन ईट फूड, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये भी बोल सकते हो आई कैन हैव फूड, काम खत्म। इज दैट क्लियर? आई कैन हैव फूड। आई होप इट इज क्लियर टू यू? एनी कंफ्यूजन? नो सर। सिंपल सी बात है, कहीं पर भी ईट, ड्रिंक और टेक आ जाए तो वहाँ पर सिंपली हैव लगा दो। एग्जांपल्स आपको बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक लेट मी शो यू द एग्जांपल्स टू। तो ये रहे सारे एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल बोलो आई कैन हैव वाटर। इज दैट क्लियर? चलो तो यहाँ से एग्जांपल को स्टार्ट कर दें। दैट्स आई कैन ईट फूड या तो आई कैन हैव फूड। आई यूज टू ईट फूड, आई यूज टू हैव फूड, मतलब सेम ही है। राम हैज़ टू ईट फूड, राम को खाना खाना है, राम हैज़ टू ईट फूड या तो राम हैज़ टू हैव फूड। प्लीज़ ईट सम फ्रूट्स या तो प्लीज़ हैव सम फ्रूट्स। शी शुड ड्रिंक वाटर, उसे पानी पीना चाहिए, शी शुड हैव वाटर। ही मे ड्रिंक वाटर, ही मे हैव वाटर। ही इज अबाउट टू ड्रिंक वाटर, ही इज अबाउट टू हैव वाटर। सो अल्टीमेटली कहीं पर भी ईट, ड्रिंक और टेक आ जाए वहाँ पर सिंपली आप हैव को लगा दोगे। इज दैट क्लियर? कैन यू यूज दैट? यस सर। Can and Shiv and Abhishek, can you guys use that? Okay, that's really awesome. I think that you guys can use that easily. अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हैव का मतलब तो पास होना होता है यार। जस्ट अ सेक, आई डोंट नो व्हिच साइड द साउंड इज कमिंग फ्रॉम राइट नाउ, बट ओके नेवर माइंड। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पहला आपने हैव का मतलब होता देखा था पास होना, और दूसरा हैव का मतलब देख लिया ईट हो गया, ड्रिंक हो गया, टेक हो गया। तो अल्टीमेटली अगर कोई सेंटेंस आया तो पता कैसे चलेगा वहाँ पर उसका मतलब क्या निकल रहा है? एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूँ कि आई कैन हैव फूड, तो इसका मतलब क्या? मेरे पास खाना है, खाना हो सकता है कि मैं खाना खा सकता हूँ। तो कोई आंसर दे सकते हो इसका? कैसे पता करोगे? यहाँ पर हैव का मतलब पास होना होगा कि हैव का मतलब खाना पीना तो लेना होगा? एनी आइडिया? लेना होगा। जैसे मैंने बोला आई कैन हैव फूड, मतलब क्या? आई कैन हैव फूड का मतलब तो ये भी हो सकता है कि मैं खाना खा सकता हूँ, और ये भी हो सकता है मेरे पास खाना हो सकता है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास खाना हो सकता है बनाओ, तो आप बोलोगे आई कैन हैव फूड, इसका भी वही ट्रांसलेशन होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास टुडे, सो आंसर दिस क्वेश्चन। शिव, खाना ले। हेलो शिव, अभिषेक, कैन यू गाइस हियर मी? Since as is, Yes, sir. oh that's great. I thought you weren't here. So कैसे पता करोगे सर? बताओ। इसमें कैसे पता कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपके कन्वर्सेशन के टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। यस सर, आई कैन हैव फूड, मैं खाना खा सकता हूँ, मतलब सिंपल सी मैं बात है। खाना- देखा, मैंने बोला कि आई कैन हैव फूड, तो इसका मतलब पास होना भी हो सकता है, इसका मतलब खाना भी हो सकता है। तो जब आपने बोला आई कैन हैव फूड, मतलब मेरे पास खाना हो सकता है, और आप बोलते हो मैं खाना खा सकता हूँ, मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, अगर बात करो कि भैया मेरे पास खाना नहीं है, पता नहीं है, साथ मेरे पास खाना हो सकता है, तो वहाँ पर बोलोगे आई कैन हैव फूड, तो वहाँ पर उसका मतलब हो जाएगा पास होना। और खाना खाने की बात करो कि यार मैं खाना खा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और तब बोलो आई कैन हैव फूड, तो वहाँ पर उसका मतलब हो जाएगा खाना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। सो दिस इज द सिंपल थिंग। आपको बुक में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, तो इन सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद कल हम थोड़ा दा के यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी? अच्छा, नीचे आओगे तो कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं जो आपकी स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। लेट मी नो, लेट इट बी, लाफ, मेक हिम लाफ, डांस, ये सारे एग्जांपल्स, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देयर कैन बी प्रीटी मच यूजफुल। सो अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट ये लेसन कौन सा रहा आपका, कल मैं दा का यूज की बात करूँगा, और फिर यही दी एंड हो जाएगा, और फिर 10 से स्टार्ट हो जाएगा। तो लेसन नंबर 9 के जितने भी एग्जांपल सबकी आप प्रैक्टिस कर लेना, एंड विद दिस थिंग्स वी आर गोना बी गोइंग अहेड। कल हम थोड़ा दा का यूज करेंगे और फिर हम टेंस में मूव कर जाएंगे। सो इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर टू यू? Is that clear to you? Yes, sir. All right, everybody. So this was it in today's class. Now I'm gonna be catching up tomorrow. Until then, just make sure keep practicing everything properly, keep revising, and then keep going ahead. Bye bye. Thank you, sir. You're welcome. Bye bye. Take care.